कैसे है आप लोग? कैसे है? तो we are going to move to the chapter called averages and ages. So it is one of the best chapters. Okay. So my name is Keshav Krishna. So currently I am a student at IIT Kharagpur. So without further ado, let's get started. So this is the first question. This is the first question. So before that, let us move on to some theories. So what are our averages? What are averages? Averages का मतलब इतना ही है क्या? Sum of observations divided by number of observation. ठीक है? ठीक है? ये नॉर्मल एवरेज. ठीक है? So, एक और छोटा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज करता है. वो क्या है? वो ये है कि वेटेड एवरेज. क्या? वेटेड एवरेज. तो वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज इसका डेफिनेशन है. If there are k having if there are k groups having numbers n1 n2 n3 goes on like this till nk. ठीक है? With averages corresponding to each group, corresponding the averages corresponding to each groups be a1 a2 a3 an ak. then then weighted average is equal to weighted average is equal to n1 a1 plus n2 a2 plus tin 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 nk ak divided by n1 plus n2 goes on like this. So this is the concept. इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है. जब क्वेश्चन करेगा समय पे ये बहुत ज्यादा आसान फील करेगा तुम लोगों को. ठीक है? ठीक है. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. एवरेज ऑफ 3 even consecutive integers. Even mentioned है, consecutive भी mentioned है, integers भी mentioned is 12. So let first number equal to x. So second number क्या होगा? x plus 2 होगा. थर्ड नंबर क्या होगा? x plus 4 होगा. ठीक है? दो 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 का गैप. सो इसका एवरेज फाइंड करने के लिए बोला है. x plus 2 plus x plus 4 sum of observation divided by number of observation 1 2 3 which is equal to average of 3 consecutive integers is 12. थोड़ा सा बीमार है guys, kindly pardon for that. So three even consecutive integers is 12. So what is their products? Product क्या है? So x plus x plus x 3x plus 4 5 6 which is equal to 12 into 3. 3 यहाँ से कॉमन ले सकता है या फिर ऐसा ही रख ले.
जिस इक्वल टू 12 इंटू 3 क्या है 36 माइनस 6. ठीक है. सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी ये 30 होगा 30/3 होगा which is equal to 10. So what do you have to find? What is their product? एक नंबर x 10 होगा, दूसरा नंबर 10 + 2 12 होगा, तीसरा नंबर 10 + 4 14 होगा. इसका वैल्यू क्या होगा 1680. कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग कर ले. ठीक है. आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में. So moving on to the next question. Find the average of following numbers. Average का क्या है? Sum of observations by number of observations. 12 plus 15 plus 18 plus 14 plus 16 plus 13 plus 25 plus 28 plus 23 plus 27 divided by क्या होगा कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 numbers. So after finding out the value of this, you will get 19.1 as answer. 191/10 मिलेगा. Further 19.1 as. Okay. The answer to this question is option C. Answer to this question is option C. So moving on to the next question, guys. The average weight of a class of 25 students is 52. So 25 students है क्लास में. उसका एवरेज वेट क्या है? क्या दिया गया है 52 है. So one more student of 52 kg joins the class. So what will be the average weight of a class? So यहाँ पे क्या यूज करता है वेटेड एवरेज. वरना तुम लोगों को अपना दिमाग डायरेक्टली यूज कर वो भी कर सकता है डायरेक्ट दिमाग. ठीक है. डायरेक्ट दिमाग कैसे यूज करता है? अभी 25 स्टूडेंट्स है क्लास में, इसका एवरेज 52 है. एक और स्टूडेंट 52 kg का आएगा तो फिर उन लोगों का एवरेज चेंज नहीं होता है. ऐसा भी कर सकता है वरना वेटेड एवरेज यूज करता है. कैसे? तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट का एवरेज, द एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 52. इसका मतलब क्या है 25 इंटू 52. ठीक है. एंड वन मोर स्टूडेंट ऑफ 52 kg, वन स्टूडेंट ऑफ 52 kg जॉइन द क्लास. ठीक है. वो ऐड किया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम किया. व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द क्लास? 25 स्टूडेंट्स था पहले, इसके साथ एक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऐड किया. ठीक है. आसान है क्वेश्चन. तो 25 इंटू 52 करो एंड फर्दर नीचे 26 आएगा और ऊपर क्या आएगा. हाँ 1300 आएगा पहले यहाँ पे. कैसे 25 इंटू 52 कितना है 100/4 मतलब क्या है 52. तो ये कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा 1300 25 इंटू 52 1300 प्लस 52. उसका मतलब क्या है which is equal to 1352 divided by 26. का वैल्यू क्या होता है 52 की. So the answer to this question is option C. आसान है ये चैप्टर से आसान क्वेश्चन पूछता है. If you are having any kind of doubt, kindly please revisit each and every questions. ठीक है. So guys, moving on to the next question. In a coconut grove है x plus 2 trees yield 60 nuts 60 nuts plus per year. ठीक है. इसका मतलब क्या है x plus 2 trees है वो इसका एवरेज दिया है
60 नट्स पर ईयर पर ट्री 60 नट्स मिला है, ठीक है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ नट्स क्या होगा, 60 इंटू ये नंबर ऑफ ट्रीज, उतना नट्स मिला है। एक्स ट्रीज यील्ड, एक्स ट्रीज है वो कितना यील्ड किया है, 120 नट्स। तो फिर टोटल नंबर ऑफ नट्स क्या है, x इंटू 120, एक्स ट्री से 120 नट्स मिला है, इसका मतलब x इंटू 120 टोटल नट्स इतना मिला पर ईयर। एंड x माइनस टू ट्रीज यील्ड 180 नट्स, तो मतलब क्या है, x माइनस टू इंटू 180 होगा टोटल नंबर ऑफ नट्स। इफ द एवरेज यील्ड पर ईयर पर ट्री बी 100, देन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो तुम लोगों को क्या पता है, एवरेज का पता है, एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही है क्या वेटेड एवरेज, वही है क्या वेटेड एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस का सम, टोटल नेट्स कितना है, कितना है, x प्लस टू ट्री से 60 नट्स मिला है, तो फिर x प्लस टू इन 60 होगा टोटल नट्स फ्रॉम x प्लस टू ट्रीज, ठीक है। तो x ट्री से कितना नट्स मिला है, एक्स ट्री से कितना नट्स मिला है, 120 नट्स मिला है, ठीक है। और x माइनस टू ट्री से कितना नट्स मिला है, कितना नट्स मिला है, 180। और फर्दर क्या करना है, फर्दर क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, x प्लस टू प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस टू करना है, ठीक है। प्लस टू माइनस टू गेट्स कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ एवरेज यील्ड पर ईयर पर ट्री इज इक्वल टू 100, एवरेज यील्ड भी दिया है 100 दिया है, तो फिर ये सॉल्व करना है, एक इक्वेशन फॉर्म आउट हुआ है, ये सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करते हैं कैसे, 60x प्लस 120 प्लस 120x प्लस 180x माइनस 18 टू सर 36, ठीक है। ऐसे मिलेगा, डिवाइड बाय क्या मिलेगा, x प्लस x 3x मिलेगा विच इज इक्वल टू 100। ये सब में क्या है, जीरो कॉमन है, जीरो बाहर निकल के यू कैन कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स इफ यू वांट, ठीक है। आसान होगा क्वेश्चन, तो फिर क्या होगा, 60x प्लस 120x प्लस 180x, 60 प्लस 120x क्या है, आंसर विल बी 180x, 180x प्लस 180x 360x, और 120 360 माइनस 120 क्या है, 240, वो भी माइनस में होगा, माइनस 240 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3x होगा, उसका वैल्यू क्या होता है 100, विच इज इक्वल टू 300x इज इक्वल टू 360x माइनस 240, विच इज इक्वल टू 300 इस तरफ लेते समय 60x होगा, और यहाँ पे 240, जीरो जीरो गेट कैंसल, x इज इक्वल टू, so the answer to this question is value of x 4। आसान है बच्चों, कैलकुलेशन पार्ट है, इनिशियल पार्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फर्दर टू कैलकुलेशंस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 3.95, 6 नंबर्स है क्या एवरेज क्या है 3.95, द एवरेज ऑफ टू ऑफ देम इज 3.14, उसमें दो नंबर्स है, x1 x2 x3 x4 x5 x6, 6 नंबर्स है,
उसमें द एवरेज ऑफ टू ऑफ दम, रैंडम टू नंबर्स का एवरेज क्या है? 3.4 है। well the average of other two is 3.85. 1 2 3 4 5 6. What is the average of remaining two numbers? 1 2 3 4 5 6. The average of six numbers is 3.95. The average of two of them 3.4. While the average of 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ठीक है. The average of two of them is 3.4, while the average of other two is 3.85. ठीक है, रैंडम नंबर्स का एवरेज 3.85 है. व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स? ये दोनों नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है. कैसे करूंगा? ठीक, एवरेज क्या दिया है? द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर्स. सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. वो वेटेड एवरेज भी सेम चीज है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बट वो n1 a1 n2 a2 n3 a4. यहाँ पे क्या है? ऐसा n1 क्या है, क्या होता है, दिखाता हूँ क्या होता है. The average of six numbers is 3.95. 3.95 पहले लिख दे. और फर्दर क्या लिखना है? The average of two of them is, दो नंबर्स के एवरेज 3.1 3.4 है. तो फिर ये दो नंबर्स का एवरेज मैंने यहाँ पे लिखा है 3.4 है. और the while the average of other two is, ये दो नंबर्स का एवरेज क्या है? 3.85 है. और व्हाट इज द एवरेज रिमेनिंग टू नंबर्स? ये दो नंबर्स का एवरेज क्या है? टू नंबर्स है, इसका एवरेज लेट्स अस्यूम x, एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स. ठीक है, यस. टोटल नंबर्स कितना है? टू, टू प्लस टू फोर, टू, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स. ऐसा होगा. तो इक्वेशन मिला. व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज सॉल्व दिस. कैसे? 3.95 इंटू 6 करना है पहले, या फिर टू यहाँ से कॉमन लेने के बाद ऊपर नीचे कट करना है, तो फिर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा नीचे. ऐसा भी कर सकता है, तुम लोगों का मर्जी. ठीक है. 4 2 8, 3 2 6, 6.8, yes. 5 2 10, 0, 8 2 6 17, 3 2 6 7, प्लस 2x. तो क्या करना है? 2x एक साइड, और 3.95 इंटू सिक्स क्या है? कैलकुलेट कर ले. 3.95 इंटू सिक्स करने के बाद क्या करना है? -6.8, -7.7, एंड फर्दर क्या करना है? x इज इक्वल टू 3.95 इंटू सिक्स -6.8 -7.7 डिवाइड बाय क्या करना है? डिवाइड बाय 2 करना है. So you will be able to get the answer. So answer to this question is B, 4.6. 4.6 आसान है एवरेजेस का क्वेश्चन. थोड़ा तो क्या बताओ है, थोड़ा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट्स पता लगना चाहिए. And further you guys have to solve the questions. Okay. So the next question is this. So what you guys have to do is solve this question. Don't leave it as it is. ठीक है. So the average of a group of person going for a picnic is 16 years. So there is a group. एक ग्रुप था जिसमें कुछ कुछ लोग हैं. उसका एवरेज क्या दिया गया है? 16 years. 20 न्यू पीपल, एक और ग्रुप ऐड हुआ है 20 पीपल का, विद एन एवरेज ऑफ 15 years. यहाँ पे भी क्या होता है? वेटेड एवरेज यूज करना है ना बच्चों? वेटेड एवरेज यूज करना है. वेटेड एवरेज और एवरेज के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं. So 20 new persons with an average of 15 years joined the group. Join किया है ग्रुप में. The sport due to which their average becomes
ऑन द स्पॉट ड्यू टू विच देयर एवरेज बिकम्स 15 पॉइंट्स। इसकी वजह से उन लोगों का एवरेज क्या हुआ, उन लोगों का एवरेज में छोटा सा डिफरेंस हुआ, 15.5 years। Define the number of persons initially going for। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम क्या करता है, the average age of people going for a picnic, group of person going for a picnic is 16 years। ये इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन हमें पता नहीं है तो हम एक्स लेता है। ठीक है, जो जो चीज पता नहीं है वो एक्स लेता है। एक्स नंबर ऑफ पीपल का एवरेज है 16 ईयर्स है। ठीक है, 20 न्यू पर्सन, 20 न्यू पर्सन विद एन एवरेज एज ऑफ 15 ईयर्स जॉइन द ग्रुप। ठीक है, ऑन द स्पॉट। तो इसका एवरेज क्या है, ऑन द स्पॉट देयर एवरेज बिकम, एवरेज क्या होता है, नंबर इनटू कितना है एवरेज इनिशियल ग्रुप का नंबर, सेकेंड ग्रुप का नंबर इनटू कितना है उन लोगों का एवरेज। सो क्या होता है, x प्लस 20 होता है, नंबर है ना ये तो, x है 20। हाँ सर। तो सो ड्यू टू विच द एवरेज बिकम्स 15.5, तो उन लोगों का एवरेज क्या हुआ, 15.5 हुआ। तो क्या होता है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली गोइंग फॉर पिकनिक, ये x फाइंड आउट करना है। x क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स initially going for picnic। ये है, ठीक है। तो फर्दर क्या करता है, हम 15.5 इंटू एक्स प्लस 20 करता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है 16x प्लस 20 इंटू 15 क्या है, 52 से क्या है 30, जीरो ऐड करता है। यहाँ पे क्या होता है 15.5x होता है, और 15 टू से 30 होता है, 0.5 इंटू 2 1 होता है। तो फिर क्या होता है 31 होता है, एक जीरो भी डाल दे, 16x 300 होता है। तो फर्दर क्या होता है, ये इधर से इधर लेते समय 16x माइनस 15.5x, और इधर से इधर लेते समय 10 होगा। ठीक है, और ये 0.5x होगा, और ये 10 होगा, और x इज इक्वल टू 10/0.5, 100/5। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20। कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग देखना है, बट यू गाइस हैव टू नो क्वेश्चंस क्या है, कोर क्या है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन का प्रॉपर्टी क्या है, एक मेन चीज है ये क्वेश्चन में, क्या है, एवरेज ऑफ ए बैट्समैन फॉर 40 इनिंग्स 50 रन्स। 40 इनिंग्स किया है, उसमें एक बैट्समैन ने 50 रन्स, उसका एवरेज हुआ है। ठीक है, तो his highest score exceeds his lowest score by 172 रन्स। उसने पता नहीं कौन से इनिंग्स में स्कोर लिया है। ठीक है, तो फिर एक इनिंग्स में उसको लोएस्ट स्कोर मिला है, एक इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोर मिला है। ठीक है, एक इनिंग्स में क्या बोल रहा है, हाँ। तो उन ये दोनों चीज का डिफरेंस क्या होता है 172 रन। ठीक है, if the two innings are excluded, वो स्मॉल लोवेस्ट स्कोर का इनिंग्स और हाईएस्ट स्कोर का इनिंग्स एक्सक्लूड करते समय उसका 40 इनिंग्स से दो इनिंग्स एक्सक्लूड किया, 38 इनिंग्स का क्या, वो एवरेज ड्रॉप हो रहा है, पहले से 2 रन ड्रॉप हो रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 38 इनिंग्स का दो इनिंग्स एक्सक्लूड किया, तो फिर दो इनिंग्स एक्सक्लूड करते समय क्या होता है 38 इनिंग्स होगा, उसका एवरेज ड्रॉप हो रहा है।
एवरेज ड्रॉप हो रहा है बाई 2 रन, मतलब 48 एवरेज हो रहा है, न्यू एवरेज। ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर के बीच का डिफरेंस दिया है। ठीक है, हमें हाईएस्ट स्कोर फाइंड करना है। क्वेश्चन आसान है, बट क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू, अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन है, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन। एवरेज ऑफ बैट्समैन फॉर 40 innings is 50 runs. So I1, I2, I3 ऐसे ऐसे चल के I40 तक है। सो एवरेज क्या है इसका, 50 रन है एवरेज। ठीक है, ये दिया गया। फिर हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स दिस लोवेस्ट स्कोर, तो हम क्या करता है, हाईएस्ट स्कोर को क्या मानता है, एक्स मानता है। हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू एक्स, लेट हाईएस्ट स्कोर बी। ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स लोवेस्ट स्कोर बाय 172 रन। तो लोवेस्ट स्कोर क्या होगा, हाईएस्ट स्कोर ये होगा, तो फिर लोवेस्ट स्कोर क्या होगा, लोवेस्ट स्कोर ये होगा ना, क्या एक्स से 172 माइनस करेगा तो फिर लोवेस्ट स्कोर मिलेगा ना। यस, हाईएस्ट स्कोर मींस एक्स, एक्स एक्स में से 172 माइनस करेगा तो फिर लोवेस्ट स्कोर मिलेगा ना। क्यों, ये हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस ये है 172 में, तो फिर ऑब्वियसली मिलेगा। इफ 2 innings आर एक्सक्लूडेड, क्या ये लोवेस्ट मान ले, ये भी एक्सक्लूड किया और ये हाईएस्ट मान ले, 140 वाला भी हाईएस्ट होना अच्छा जरूरी नहीं है, बट लेकिन फिर भी हम मानता है कि ये दोनों एक्सक्लूड किया है, तो फिर क्या होगा, दिस एवरेज ड्रॉप्स बाय 2 रन। ऐसा रिमूव किया तो फिर एवरेज 2 रन ड्रॉप हुआ। एवरेज पहले क्या था, 50 होता था और ड्रॉप हुआ 2 रन से, विच मीन्स 48 हुआ। तो फाइंड द हाईएस्ट स्कोर, फिर हाईएस्ट स्कोर फाइंड करता है। तो फिर हम क्या करता है, अभी न्यू एवरेज क्या है, 48 है, क्वेश्चन से हमें पता चला है। ठीक है, तो पहले क्या था, 40 इनिंग्स था, उसमें 50 रन है, नंबर ऑफ इनिंग्स इंटू एवरेज रन्स फॉर 14। ठीक है, ऐसा करता है। और इसमें से क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया, his highest score exceeds his lowest score by 172 runs. ठीक है, if these two innings are excluded, तो हाईएस्ट स्कोर वाला इनिंग्स मैंने एक्सक्लूड किया है और लोवेस्ट स्कोर वाला इनिंग्स, ये है लोवेस्ट स्कोर, वो भी एक्सक्लूड किया है। उस समय पे क्या हो रहा है, क्या हुआ है, इस एवरेज ड्रॉप्स बाय 2 रन, एवरेज 2 रन से ड्रॉप हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो फिर क्या होगा, 40 नीचे क्या होगा, 40 प्लस, 40 प्लस नहीं होगा, 40 -1 -1, क्योंकि अभी अभी इनिशियली 40 इनिंग्स था, अभी 38 इनिंग्स है। क्यों, ये इनिंग्स और ये इनिंग्स हमने रिमूव किया है। ठीक है, इतना ही है, ये सॉल्व करना पड़ता है, तो ये सॉल्व करना है। तो क्या होगा, 48 इज इक्वल टू 40 इंटू 50 -x -x माइनस माइनस प्लस 172 डिवाइड बाय 38 होगा, 40 -2, सो 48 इंटू 38 इज इक्वल टू 4 5 से 20, 0 -2x प्लस 172, सो 2172 -2x, 48 इंटू 38 क्या होगा,
राइट डाउन द वैल्यू हो गई। सो फाइनली क्या है ना, 2x इज इक्वल टू 2172 माइनस 48 इंटू 30 एंड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर ले। क्या होगा, कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स, डू दैट। ठीक है, आंसर सी होगा, 174 होगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, आसान है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छा बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए स्कूल हैज 4 sections। ठीक है, a school has 4 sections। uh, the mean marks obtained in chemistry tests are thus respectively for 4 sections। Determine the overall average of marks per student। आसान है ना क्वेश्चन, do this question as solve। कैसे होता है, 4 sections है, section 1 section 2 section 3 section 40 स्टूडेंट्स है, 40 इंटू 50 करना है पहले, 35 इंटू 60 करना है, 50 45 इंटू 55 करना है, 42 इंटू 45 करना है। तो उसके बाद ऐसे ऐसे करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना है, तो ओवरऑल एवरेज मिलेगा। ऑप्शन बी है आंसर, तो करना अपने आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ सचिन, द एज ऑफ सचिन इज 4 times दैट ऑफ सन। एजेस वाला क्वेश्चन है, हाँ, एवरेजेस खत्म, एजेस वाला क्वेश्चन है। एज ऑफ सचिन इज 4 times दैट ऑफ सन। 5 years ago Sachin has 9 times, Sachin was 9 times as old as his son was at that time, present age of Sachin। So how to do this question, age of Sachin is 4 times that of his son। ठीक है, क्या करता है, current age of Sachin, let us take to be x and son, let's take to be y। या फिर क्या करता है, इससे बढ़िया एक चीज करता है, Sachin s, हाँ s, और son x लेता है। तो age of Sachin is 4 times that of his son। Age of Sachin is 4 times that of his son। 5 years ago, 5 years ago क्या होता है सचिन का एज को, x-5, और सन के एज को क्या होता है, x-5 होता है। 5 years ago क्या बोला गया है यहाँ पे, सचिन was 9 times as old as his son at that time। सचिन का सन का एज क्या होगा, x-5 होगा, सचिन का एज भी x-5 होगा, x-5 क्यों, 5 साल पहले है। तो फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, सचिन was 9 times as old as his son। सचिन उस समय पे नो टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन था, सन का 9 गुना ओल्ड था। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सचिन इज, सो यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सचिन। फिर डायरेक्ट करता है, s-5 इज इक्वल टू 9x माइनस 35 एंड फर्दर क्या होगा, s के जगह पे 4x डालता है, तो फिर हमें जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, और 9x एक जगह क्या करता है, 5x मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 45 माइनस 5 मिलेगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और द परसेंटेज ऑफ सचिन फाइंड आउट करना है, सचिन का परसेंटेज क्या है, 4 टाइम्स उसका सन का परसेंटेज, तो 4 8 आर क्या होता है, 32, 32 ईयर्स ओल्ड होगा। आसान क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा अपना दिमाग डालो, थोड़ा सा। ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, go through the question once, twice, thrice, 4 times, 5 times, 6 times, till
टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है, एंड ट्राई टू डू बाय पॉजिंग ऑफ द वीडियो। यहाँ पे क्या दिया गया है, रानी's current age is 3 times that of her daughter. रानी's current age is 3 times her daughter's year. दो डॉटर कौन है, मेरी, ठीक है, मेरी डॉटर कौन है, मेरी, तो हम क्या करते हैं, so we are assuming Rani's age current present age to be R and Mary's present age to be M, ठीक है, so Rani's current age is 3 times that of her daughter Mary, ठीक है, एंड क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट, 4 years ago Rani's age will be R minus 4 and Mary's age will be M minus 4, क्या बोला गया है, Rani's age was 4 times that of her daughter, Rani's age was 4 times that of her daughter, what will be Mary's age 5 years from now, so Mary's initial age percentage क्या है, percentage percentage of Mary, ये percentage of रानी है, तो हमें हमसे क्या बोला है, what will be Mary's age 5 years from now, m+5 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो Rani's current age is 3 times that of her daughter Mary, and 4 years ago R minus 4 M minus 4, Rani's age was 4 times that of her daughter, Rani's age ये है 4 times that of her daughter, what will be Mary's age 5 years from now, R minus 4 होगा 4M minus 4 4 16, ऐसा होगा, एंड Rani's age क्या है 3 times Mary's age है, वो भी हमें पता है, तो यहाँ पे 3M डालना, minus 4 is equal to 4M minus 16 होगा, तो इसमें से M एक्स्ट्रा करना, M is equal to क्या मिलेगा, 60 minus 4 क्या है 12, एंड M+5 का वैल्यू क्या है 12 plus 5 17, 17 होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है, 9 men went to hotel, 9 men went to hotel, 8 of them spent, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 9 men went to hotel, 9 लोग कहाँ गया है, होटल गया है, एंड 8 of them spent ₹3 each over their meals, ठीक है, एंड 9 spent to more than the average expenditure of all the 9, total money spent by all of them was, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 9 men went to hotel, टोटल कितना लोग हैं, 9 लोग हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 as 8 of them spent 3 over the meals, they spent ₹3 over the meals, and ninth spent ₹2 more than the average of 9 people, ठीक है, so what can we do, let's take average of 9 people, let's take to be x, ठीक है, so इसका वैल्यू क्या होगा, x+2 होगा, 9th वन का एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो can you solve this question, pause out the video and try to solve this question, but I'll be giving the answer, ठीक है, यहाँ पे the total money spent by all of them was, टोटल मनी कितना है, हमें क्या पता चलना चाहिए, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 plus x8 plus x9 इंटू उसका उन लोगों का टोटल मनी कितना है, ये पता चलना चाहिए, तो हम क्या लिख सकता है, 8 of them spent ₹3,
8 of them spend 3 rupees each over their meals, and the ninth one ninth one what is meant by ninth one? There will be ninth one will be one member will be there total. First 8 into 3, ninth one will be 1 into spend 2 rupees more than the average x plus 2. ठीक है, तो इसका स्पेंडिंग इतना है, ठीक, एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9, तो डिवाइडेड बाई 9 क्या होगा, इन लोगों का टोटल एवरेज ऑफ 9 पीपल क्या होगा, x, ये सॉल्व करना है, ठीक है. To solve this question, find out the value of x. So the value of x is 29.5. ठीक है. The answer to this question is 29.5. So clear, easy. So guys, we are done with this chapter. So bye bye guys. Thank you so much for watching. Stay tuned. Give mock test, okay? And try to see the solutions. Even if you are like facing any kind of issues in mock test, try to see the solutions out, and further try to resolve the questions. Okay. All the best, guys. Stay tuned. Till then, this is me, Keshav.